ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा रिलेशनल ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो हमने डेटा मॉडल्स में हमने 5 मॉडल देखा था। हमने नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ये तीनों रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल थे। ठीक है, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये दोनों क्या थे आपके? ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल थे। तो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल हमने कंप्लीटली देख चुका है, वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, आज हम देख रहे हैं रिलेशनल मॉडल विच इज एन रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। So in RDBMS technology, RDBMS stands for Relational Database Management System. Clear है? Relational Database Management System. A DBMS which follows relational model is known as Relational Database Management System. Clear है? Any DBMS which follows relational model terminology is known as Relational Database Management System. So in Relational Database Management System, each table is known as relation. Each record or row is known as the tuple of the relation, and the number of rows is known to be a cardinality of the relation. Next one is each column or each field is known as the attribute of the relation, and the number of columns is known as the degree or arity of the relation, and the unique identifier in the table is known as the primary key of the relation, and the set of legal values is known as the domain of the relation. Clear? So these are the RDBMS terminology. So in this diagram we have two relations. Okay, two tables means two relations. First relation is branch, second relation is staff. Okay, we have two relations, branch and staff, or you can say you have two tables. First table name is branch, second table name is staff. Okay, these are the attributes of the relations, or you can say the columns of the tables. Attributes are branch number, street, city, and postcode. And here also the attributes of staff relation are staff number, first name, last name, position, sex, date of birth, salary, and branch number. So these are the attributes of staff relation. Clear? And this is a row, or individual row is known as the tuple of the relation. So this is first tuple, this is first tuple, this is second tuple, third tuple, fourth tuple, fifth tuple. And number of tuples is known as the cardinality. So cardinality of branch relation is 5. Similarly, cardinality of staff relation is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So cardinality of staff relation is 6. Clear? Similarly, degree or arity of the relation. So degree or arity of the relation is known as the number of attributes or number of columns present in the relation. So in branch 1, 2, 3, 4, so there are 4 attributes, so degree of the branch relation is 4. Similarly, degree of staff relation is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is 8. Clear? So degree of staff relation is 8, degree of branch relation is 4, cardinality of branch relation is 5, and cardinality of staff relation is 6. Clear? And these are the domain values. ठीक है, that means branch number मैंने एक attribute define किया है, तो इनका क्या होगा? एक specific domain होगा कि इसमें जो set of values रख रहे हैं उनका क्या size है, किस size के वो data रख रहा है या किस type के data वो रख रहा है, whether he is storing number data or whether he is storing the character data. Clear? So this is the domain of the relation, or it is known as the set of legal values. तो ये डोमेन हम डिफाइन करते हैं जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन करते हैं, दैट मींस कॉलम नेम्स को डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ उनका डोमेन भी डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का डेटा रख रहा है, उनकी मैक्सिमम साइज क्या है। क्लियर है? वो हम डीडीएल क्वेरी में डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं, ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये
दो रिलेशन है उस पर्टिकुलर डेटाबेस में. फर्स्ट रिलेशन इज स्टूडेंट, सेकंड रिलेशन इज प्रोजेक्ट. क्लियर है? सो डिग्री ऑफ द स्टूडेंट रिलेशन इज 1 2 3 4 5 6. There are 6 attributes, and cardinality of student relation is also 1 2 3 4 5 6 number of tuples. So these are 6. Similarly, degree of project relation is 3 and cardinality of project relation is 3. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हमें पढ़नी थी, वो था प्राइमरी की. ठीक है, तो प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जिससे हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने प्राइमरी की क्या बनाया, ब्रांच नंबर को हमने क्या किया है, प्राइमरी की बनाया है. तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या रहेंगी, यूनिक वैल्यूज रहेंगी. क्लियर है? सिमिलरली स्टाफ में अगर स्टाफ नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया है तो इसमें भी क्या होंगी, सारी की सारी यूनिक नंबर्स रहेंगी. ठीक है, और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम कर रहे हैं फॉरेन की. ठीक है, फॉरेन की मीन्स जो इस प्राइमरी की को रिफर कर रहा है. ठीक है, अभी डिटेल में देखेंगे फॉरेन की क्या है. तो ये फॉरेन की में जो वैल्यूज आएंगी, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ये कहां से आएंगी, यहीं में से आएंगी. ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू जनरेट हो रही है तो उसी को मैं यहाँ स्टोर कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टोर नहीं कर सकता. सो हियर ऑल्सो रोल नंबर इज द प्राइमरी की, project number is the primary key for project relation, roll number is the primary key for student relation, and this project number is an foreign key which refers to this project number. ठीक है, so this is foreign key and these two are the primary key. This is also primary key, this is also primary key. So this is the primary key of student relation, this is the primary key of project relation, and this is the foreign key for student relation, which refers to its parent table. Parent table will be project and it will be P number. P number कीज. आज हम लोग पूरा जो डिस्कशन की की क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कीज क्या होती हैं, कैसे पहचानना है कि कौन से की को क्या बोलते हैं. क्लियर है? सो व्हाट इज अ की? सो अ की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड. ठीक है, अ की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस. Suppose we have a student relation or student database in which we have 6 columns, 6 rows. ठीक है, so each tuple is identified by some unique value of the particular column. So that column is known as key. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, राम को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं. मेरे को राम को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास रोल नंबर है उसका, कि राम का रोल नंबर 1 है, उससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. राम का सेमेस्टर 3 है, उससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. राम का जो ब्रांच है वो है CSE, उससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. उसके मार्क्स 40 हैं, उसके प्रोजेक्ट नंबर जो है वो क्या है, 121 है. ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कितने हैं, 6 पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं. सो वी हैव 6 कीज टू आइडेंटिफाई राम. क्लियर है? अब ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल भी सकता है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं भी मिल सकता है. क्लियर है? सो what is key? A key is used to identify a record in database, or in other words, a subset of the fields within a table for which data must be entered and validated before a new record may be added to the table is called the key values or key attribute. क्लियर है? तो अगर मैं कोई की डिफाइन कर रहा हूं कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर, तो जब मैं वैल्यूज डाल रहा हूं इसमें, तो उसमें वैलिडेशन हम क्या करेंगे, उसमें की में रखेंगे कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज में मैं एंटर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कीज में. सो टाइप्स ऑफ कीज आर सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, सिमेंटिक और नेचुरल की, और सैरोगेट और टेक्निकल की और आर्टिफिशियल की. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन, अच्छा, एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल हमने लिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सेमेस्टर है और सिटी है. ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं और उस स्टूडेंट रिलेशन में मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 and 7. So degree of student relation is 7 and cardinality of student relation is 5 because we have 5 records or 5 tuples. अब आते हैं सुपर की डेफिनेशन. So a super key is a set of one or more attributes which taken collectively allows us to identify uniquely an entity
विद इन एन एंटिटी सेट और अ ट्यूपल विद इन अ रिलेशन। ठीक है, अगर मैं सुपर की इन टर्म्स ऑफ ईआर डायग्राम में टर्म करूं तो मुझे क्या चाहिए, एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है विद इन एन एंटिटी सेट। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन को मैं रिलेशन मॉडल में पढ़ूं तो मुझे क्या चाहिए, एक ट्यूपल को आइडेंटिफाई करना चाहिए एक रिलेशन में। मतलब ये एक जो ट्यूपल है, इस एक ट्यूपल को मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैं एट्रीब्यूट्स ले रहा हूं या यूनिक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ले रहा हूं जिससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। यूनिकली मींस अगर मैं वैल्यूज दूंगा तो मुझे एक ही ट्यूपल मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा ट्यूपल नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है? तो उसको हम बोलेंगे सुपर की। तो सुपर की डेफिनेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूनिकली। आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली और आइडेंटिफाई अ ट्यूपल यूनिकली और आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन एन एंटिटी सेट यूनिकली। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट टेबल, the super keys are serial number, roll number, enrollment number and combination of first name, last name, SAM and city। तो देखते हैं, अगर मैं सीरियल नंबर को देखूं तो सारे के सारे सीरियल नंबर मेरे पास क्या है, यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्राइमरी की बनाता हूं, सॉरी मैं अगर इसको सुपर की बनाता हूं तो सारी की सारी वैल्यूज मेरी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक वैल्यूज हैं। अगर मैं रोल नंबर रख रहा हूं सो दीज वैल्यूज आर आल्सो यूनिक। ठीक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। अगर मैं एनरोलमेंट नंबर रखूं तो ये भी मेरे पास क्या है, सारे के सारे यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी अ सुपर की। अब राम रिपीट कर रहा है, मैं इसको सुपर की नहीं बना सकता। ठीक है, शर्मा रिपीट कर रहा है, मैं इसको भी सुपर की नहीं बना सकता। सेमेस्टर रिपीट कर रहा है, मैं इसको भी सुपर की नहीं बना सकता। भिलाई भिलाई रिपीट कर रहा है, ये भी नहीं बना सकता। अब मैं कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो राम शर्मा रिपीट कर रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मेरा क्या होगा, सुपर की नहीं होगा। अगर मैं लास्ट फर्स्ट नेम और सेमेस्टर कर रहा हूं तो राम सेवन हो रहा है, तो भी ये भी मेरा क्या होगा, सुपर की नहीं होगा। फर्स्ट नेम और सिटी को कर रहा हूं तो राम भिलाई है, राम रायपुर है, श्याम भिलाई है, मोहन रायपुर है, गोपाल दुर्ग है, ये दोनों मिलके मेरा एक सुपर की बन सकता है। क्लियर है? सो सुपर कीज अगर मैं निकालूं, अगर मैं इंस्टेंस में निकाल रहा हूं, ये मेरा क्या है, एक इंस्टेंस है। ठीक है, इंस्टेंस है मतलब ये एक वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर टेबल की अभी। ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे एक और राम और एक और भिलाई यहाँ पर इंटर्ड हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड सिटी मेरा क्या होगा, कि इस केस में मेरा क्या होगा, ये सुपर की नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले से डिफाइन कर देता हूं कि दिस इज माई सुपर की, दिस इज माई सुपर की, दिस इज माई सुपर की एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर माई सुपर की, तो मैं डुप्लीकेट इंसर्ट कर ही नहीं सकता। क्लियर है? लेकिन अगर मेरे को एक इंस्टेंस दिया हुआ है कि ये इंस्टेंस है आइडेंटिफाई द सुपर कीज, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास कौन कौन सुपर की है, पहली सुपर की है सीरियल नंबर, दूसरी सुपर की है मेरे पास रोल नंबर, तीसरी सुपर की है मेरे पास इनरोलमेंट नंबर, फोर्थ सुपर की मैंने अभी निकाली वो थी फर्स्ट नेम, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड सिटी। ठीक है, फिफ्थ सुपर की हम देखते हैं तो फर्स्ट नेम का लास्ट नेम चेक कर लिया, फर्स्ट नेम का सेमेस्टर चेक कर लिया, फर्स्ट नेम का सिटी चेक कर लिया मैं। अब मैं देखता हूँ लास्ट नेम का सेमेस्टर से, तो लास्ट नेम सेमेस्टर दोनों रिपीट कर रहा था, मैं इसको कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता। लास्ट नेम का सिटी से देख रहा हूँ तो शर्मा भिलाई, शर्मा रायपुर, वर्मा भिलाई, वर्मा रायपुर और गुप्ता दुर्ग, ये भी मेरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या यूनिक है। यूनिक है मतलब लास्ट नेम एंड सिटी इज ऑल्सो माई सुपर की। ठीक है, और इट कैन बी माई सुपर की, क्योंकि इनका भी कॉम्बिनेशन मेरा रिपीट नहीं कर रहा है, तो मैं टर्म करता हूँ कि ये भी मेरी एक सुपर की हो सकती है। क्लियर? अगेन सेमेस्टर एंड सिटी, तो 7 भिलाई, 7 रायपुर, 5 भिलाई, 5 रायपुर, 3 दुर्ग, ये भी मेरा रिपीट नहीं कर रहा है, सो सिक्स्थ सुपर की इज सेमेस्टर प्लस सिटी। क्लियर है? तो ये तो मेरे हो गए कुछ सुपर कीज। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन भी अगर मैं ट्राई करूं तो भी मेरी सुपर की होगी। मतलब सीरियल नंबर अगर मेरा सुपर की है, सो सीरियल नंबर प्लस रोल नंबर, दिस कैन बी माई सुपर की। अगर यही एट्रीब्यूट मेरा यूनिक है तो इनका कॉम्बिनेशन भी यूनिक ही निकलेगा। ठीक है, सो सेवंथ इज सीरियल नंबर रोल नंबर, फिर निकलेगा आपका एट्थ निकलेगा तो सीरियल नंबर इनरोलमेंट नंबर, तो ऐसे करके हम कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। सो इस एग्जांपल में मैंने लिखा है कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर एंड सिटी, दीज आर माय सुपर कीज। क्लियर है? सो वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक विद सुपर की इज दैट as per its definition any combination of attributes with the super key is also a super key। तो जैसे मैंने कहा कि सीरियल नंबर मेरा सुपर की है,
ठीक है। तो मैं सीरियल नंबर का अगर मैं रोल नंबर से कॉम्बिनेशन करूंगा तो वो भी मेरा सुपर की ही निकलेगा, क्योंकि वो भी मेरा यूनिक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर की वैल्यूज यूनिक है, तो उनमें और भी कोई अगर एट्रीब्यूट ऐड करूं तो उनका कॉम्बिनेशन में मेरा क्या रहेगा, यूनिक ही रहेगा। सेकंड देखते हैं कंपोजिट की। सो अ कंपोजिट की इज set of two or more attributes which taken collectively allows us to identified an entity or a record within an entity set or relation uniquely. क्लियर है। तो अब कंपोजिट की क्या होती है कि जैसे मैंने सुपर की बताया आपको, सुपर की मैंने कौन कौन सी निकाली, एक निकाली थी रोल नंबर, एक निकाली थी सीरियल नंबर, एक निकाली थी इनरोलमेंट नंबर। ये सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट के थे, तो ये तीनों मेरे क्या होंगे, कंपोजिट की नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, फर्स्ट नेम सिटी, लास्ट नेम सिटी, सेमेस्टर सिटी, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो दीज आर माय कंपोजिट कीज 1 2 3। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल नंबर, रोल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो दीज कीज आर नोन एज कंपोजिट की। कंपोजिट की मीन्स एटलीस्ट दो एट्रीब्यूट होने ही चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर एंड सिटी, दिस कैन बी अ कंपोजिट की। क्लियर है। तो कंपोजिट की और सुपर की में डिफरेंस बस ये है कि कंपोजिट की मतलब मेरे पास एटलीस्ट दो एट्रीब्यूट होने चाहिए, जबकि सुपर की क्या होगा कि एक एट्रीब्यूट हो सकता है, दो एट्रीब्यूट हो सकता है, सारे एट्रीब्यूट को मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, सुपर की बना सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंडिडेट की। क्लियर है। सो अ सुपर की for which no subset is a super key is called candidate key. Clear है। A super key for which no subset is a super key is called a candidate key. For example, मैंने अगर सुपर कीज निकाली है, यहां पर मैंने निकाली थी स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये तीन मेरे क्या थे, सुपर कीज निकले थे। और भी सुपर कीज मैंने निकाली हैं। ठीक है। उसके बाद मैं निकाल रहा हूं सीरियल नंबर एंड रोल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल नंबर एंड रोल नंबर। ठीक है। तो इस केस में मैं अगर इसका एक सबसेट निकालूं सीरियल नंबर, सो दिस कैन बी अ सुपर की। तो इस पर्टिकुलर सुपर की को मैं कैंडिडेट की नहीं बोल सकता। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट की इज एन मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की मीन्स मैं और उसको मिनिमाइज नहीं कर सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने फर्स्ट नेम और सिटी का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। सो फर्स्ट नेम एंड सिटी का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, तो राम भिलाई, राम रायपुर, श्याम भिलाई, मोहन रायपुर, गोपाल दुर्ग, ये सारे के सारे यूनिक वैल्यूज दे रहे हैं मुझे। अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ले रहा हूं तो यूनिक वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटी ले रहा हूं तो यूनिक वैल्यूज नहीं मिल रही है मुझे। ठीक है। कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो यूनिक वैल्यूज मिल रही है मुझे। क्लियर है। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा कैंडिडेट की रहेगा, क्योंकि मैं इसका और कोई भी सबसेट सुपर की नहीं बना पा रहा हूं। क्लियर है। सो in other words, all the super keys are not candidate keys, but all the candidate keys are super keys. Clear है। all these candidate keys are also super keys, but all these super keys are not candidate keys, क्योंकि उसको मैं और मिनिमाइज कर सकता हूं। क्लियर है। So it means that there are two conditions for the candidate key. First condition is it identifies the entity instances uniquely, or it identifies a record uniquely, as in the case of super key. तो unique identification चाहिए ही चाहिए मुझे। Second, it should be minimum. That is, no proper subset of the candidate key is in key. ठीक है। That means मिनिमम होना चाहिए, मैं और उसको मिनिमाइज नहीं कर सकता कि इसमें से एक एट्रीब्यूट हटा दिया तो उसके बाद भी मेरा कैंडिडेट की मिल रहा है या सुपर की मिल रहा है। ठीक है। तो मिनिमल सुपर की इज नोन एज कैंडिडेट की। सो इफ वी हैव अ सिंपल सुपर की मींस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एट्रीब्यूट, इट इज डेफिनेटली अ कैंडिडेट की। 100% गारंटीड हो गया है कि वो क्या है, कैंडिडेट की है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ बताया था आपको, सीरियल नंबर, रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर सिंगल एट्रीब्यूट हैं, इनका और प्रॉपर सबसेट मैं नहीं कर सकता, तो ये मेरे क्या हो गई, कैंडिडेट कीज हो गई। क्लियर है। हाउएवर if we have a composite super key and if we take any attribute out of it and remaining part is not a super key anymore, then that composite super key is also an candidate key. ठीक है। that means ये तो मेरी
सुपर कीज मिल रही है जो कंपोजिट की नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कंपोजिट की है मेरे पास, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम एंड सिटी, फर्स्ट नेम और सिटी का कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं और इसमें से मैं एक को भी एट्रीब्यूट को रिमूव करके की नहीं बना पा रहा हूं, सुपर की नहीं बना पा रहा हूं, तो दैट कंपोजिट सुपर की इज आल्सो एन कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये पॉइंट वो वही बोल रहा है कि दैट कंपोजिट सुपर की इज आल्सो एन कैंडिडेट की, सिंस इट इज एन मिनिमल सुपर की, मैं इसको और मिनिमाइज नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी की। So what is a primary key? A primary key is an candidate key chosen by database designer as a principal means of identify a record uniquely. ठीक है। So a candidate key is a primary key is an candidate key which is chosen by database designer. ठीक है। तो database designer means during the table creation हम क्या करते हैं, एक को प्राइमरी की डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये मेरा प्राइमरी की है। प्राइमरी की हो गया मतलब उसको मैं क्या करूंगा कि उसमें ऑटोमेटिकली दो कंस्ट्रेंट लग चुके हैं कि उसमें या तो मेरा नल भी नहीं जा सकता, उसमें मेरा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उससे क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। क्लियर है। सो ऑल द प्राइमरी कीज आर कैंडिडेट कीज, क्योंकि मैं कैंडिडेट कीज जो बना रहा हूं उन्हीं में से किसी एक को क्या कर रहा हूं, डेजिग्नेट कर दे रहा हूं प्राइमरी की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस टेबल में कितने कैंडिडेट कीज हैं, एक तो मिल रहा है स्टूडेंट नंबर, एक मिल रहा है रोल नंबर, एक मिल रहा है नंबर। ठीक है। सपोज यही तीन अगर मैं कर रहा हूं, इनमें से किसी एक को मैंने बना दिया प्राइमरी की। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की तरह टर्म कर रहा हूं। अदर्स को मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की नहीं बोलूंगा, अदर्स मेरे कैंडिडेट की ही रहेंगे। रादर मैं उसको अल्टरनेट कीज बोल सकता हूं, जो नेक्स्ट कीज हम पढ़ने वाले। क्लियर है। सो एन एंटिटी टाइप और अ रिलेशन में है मोर देन वन कैंडिडेट कीज। ठीक है। तो एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। इन दैट केस डेटाबेस डिजाइनर हैज टू डेजिग्नेट वन ऑफ देम एज प्राइमरी की। तो एक को मैं क्या करूंगा, डेजिग्नेट कर दूंगा कि ये मेरी प्राइमरी की है, सिंस देयर इज ओनली अ सिंगल प्राइमरी की इन एन रिलेशन और इन एन एंटिटी। ठीक है। एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है। अब इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। दोनों यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे ही रहे हैं आपको। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि फॉर अ रिलेशन वी कैन डिफाइन ओनली वन प्राइमरी की, बट देयर आर मेनी कैंडिडेट कीज पॉसिबल फॉर अ रिलेशन। क्लियर है। सो फॉर अ रिलेशन वी डेजिग्नेट ओनली वन कैंडिडेट की एज प्राइमरी की। क्लियर है। but for a relation we can define any number of candidate keys. क्लियर है। तो यही एक डिफरेंस है। सो इफ देयर इज एन जस्ट वन कैंडिडेट की, अगर रिलेशन में मेरे पास एक ही कैंडिडेट की है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगी मेरी, उसी को मैं डेजिग्नेट करूंगा प्राइमरी की। ठीक है। एक से ज्यादा होंगे तो मेरे पास चॉइस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर भी है, रोल नंबर भी है, एनरोलमेंट नंबर भी है। ठीक है। तो सीरियल नंबर को भी मैं डेजिग्नेट कर सकता हूं, मैं रोल नंबर को भी डेजिग्नेट कर सकता हूं, मैं एनरोलमेंट नंबर को भी प्राइमरी की बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तीन ऑप्शन है। लेकिन अगर मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, तीन ऑप्शंस नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को ही मैं करना पड़ेगा, प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। क्लियर है। सो अ सर्टेन वैल्यू दैट मे बी एसोसिएट विद एनी एट्रीब्यूट इज नल, दैट वैल्यू मींस नॉट गिवन और नॉट डिफाइंड। तो नल वैल्यूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नल इज एन नॉट नोन वैल्यू और नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। ठीक है। सो अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की इज दैट इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। सो प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। अगर मैंने किसी को प्राइमरी की बना दिया तो उसमें एक कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली लग गया कि उसमें मैं नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। So if primary key is a composite, then none of the attributes included in primary key can have the null. That means अगर मैं दो एट्रीब्यूट को ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर और नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैं क्या कर रहा हूं, प्राइमरी की बना रहा हूं, तो ना तो मैं यहां नल इंसर्ट कर सकता हूं, ना मैं यहां नल इंसर्ट कर सकता हूं, दोनों में नल इंसर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्टरनेट। तो जैसे मैंने कहा कि a relation have n number of candidate keys, but it can have only one primary key. So out of n candidate keys
we designate one key as primary key, so rest n minus 1 keys are known as alternate keys. So candidate keys which are not chosen as the primary key are known as alternate keys. क्लियर है? तो अगर मेरे पास 3 कैंडिडेट की हैं, रोल नंबर serial number, roll number and enrollment number. If we select roll number as primary key, then serial number and enrollment number can be a alternate keys. That means alternative means of identifying a record uniquely. क्लियर है? मैं इनसे भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं. क्लियर है? तो उस पर्टिकुलर कीज को हम बोलेंगे अल्टरनेट कीज. सो अ रिलेशन कैन हैव n number of candidate keys, out of which one can be designated as primary key and rest n minus 1 keys are, or rest n minus 1 candidate keys are alternate keys. क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी की. तो अब सेकेंडरी की में क्या बोल रहा है कि मेनी टाइम्स वी नीड एक्सेस टू सर्टेन इंस्टेंसेस, मतलब मैं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस ले रहा हूं ऑफ एन एंटिटीज यूजिंग द वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स अदर देन द प्राइमरी की. ठीक है, मतलब मैं अदर देन प्राइमरी की में क्या कर रहा हूं कि उन इंस्टेंसेस में अदर देन प्राइमरी की छोड़ के ऐसे एट्रीब्यूट्स को मैं ले रहा हूं, उनकी वैल्यूज को ले रहा हूं जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं. तो उस पर्टिकुलर की को हम बोलते हैं सेकेंडरी की. क्लियर है? सो द डिफरेंसेस इन एक्सेसिंग इंस्टेंसेस यूजिंग द वैल्यू ऑफ अ की और नॉन की एट्रीब्यूट इज दैट द सर्च वैल्यूज ऑन द प्राइमरी की, अगर मैं प्राइमरी की सर्च कर रहा हूं, विल ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल इंस्टेंस और सिंगल ट्यूपल. ठीक है, एक ही वैल्यू मिलेगी क्योंकि वो यूनिक वैल्यूज हैं. वेयर एज यूनिकनेस इज नॉट गारंटीड इन केस ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट. ठीक है, अब सेकेंडरी की का यूज कहां करते हैं हम लोग वो देखते हैं. ये मेरे पास एक रिलेशन है. इस रिलेशन में मेरे पास क्या है, कुछ कैंडिडेट कीज हैं जिसमें किसी एक को मैं प्राइमरी की बना सकता हूं. ठीक है, तो मेरे पास कुछ कैंडिडेट कीज हैं. उन कैंडिडेट कीज हैं सीरियल नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर. ये 3 मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं, आउट ऑफ विच मैंने एक को बना दिया, क्या किया, प्राइमरी की बना दिया. तो अगर मैं प्राइमरी की से आइडेंटिफाई करूंगा तो मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, एक ही ट्यूपल मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसे एट्रीब्यूट को भी लेके आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि राम की सिटी जो है वो भिलाई है. ठीक है, तो राम की सिटी भिलाई है, ये मैं ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो इस सिटी को मैं बोलूंगा सेकेंडरी की. ठीक है, तो अगर मैं सेकेंडरी की से आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि भिलाई वाले कितने हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट ही मिले, हो सकता है एक से ज्यादा स्टूडेंट मिले, तो इसमें यूनिकनेस की जो गारंटीड है वो नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ दुर्ग वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मुझे एक ही स्टूडेंट मिल रहा है, इस केस मुझे यूनिक मिल रहा है. लेकिन वहीं अगर मैं बोलता हूँ भिलाई वाले कितने हैं, तो मेरे को 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं. अगर मैं बोलता हूँ रायपुर वाले कितने हैं, तो मेरे को 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं. क्लियर है? सो यूनिकनेस इज नॉट गारंटीड इन केस ऑफ सेकेंडरी की, बट इन केस ऑफ प्राइमरी की यूनिकनेस इज गारंटीड, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज में इंसर्ट नहीं कर सकता. अगर मैंने किसी को प्राइमरी की बना दिया तो ना मैं डुप्लीकेट इंसर्ट कर सकता हूं, ना मैं नल इंसर्ट कर सकता हूं. क्लियर है? तो आगे देखते हैं इसका. Such attributes on which we need to access the instances of an entity type that may not necessarily return unique instance, मतलब जरूरी नहीं है कि वो यूनिक इंस्टेंस रिटर्न करे, is called secondary key. क्लियर है? तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, भिलाई वाला और रायपुर वाला. नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन की. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की है वो है फॉरेन की, जो आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारा रिलेशनल मॉडल. ठीक है, रिलेशनल मॉडल में हम रिलेशनशिप पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉम्बिनेशंस. तो फॉरेन की हमें समझ में आनी चाहिए अच्छे से. सो व्हाट इज फॉरेन की? Foreign key is an attribute, or it is a set of attributes that serves to link one table to another table in the database, thereby establishing a relationship. So relationship between 2 tables is defined by foreign key. So foreign key often linked to primary key of the other table. ठीक है, मतलब foreign key हमेशा किसको रिफर करता है?
प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बट नॉट ऑलवेज, मतलब जरूरी नहीं कि वो प्राइमरी की कोई रिफर करे, वो किसी यूनिक वैल्यू को भी रेफर कर सकता है। क्लियर है? सो फॉरेन की जो है वो किसको रेफर करता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो प्राइमरी की वैल्यू से ही हम जनरली लेते हैं। सो इट इज रिकमेंडेड दैट वेयर अ फॉरेन की इज रिक्वायर्ड द सेम नेम एज दैट ऑफ द एसोसिएट की ऑन द फॉरेन की, फॉरेन टेबल में बी यूज्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो रिलेशन क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट रिलेशन है और एक प्रोजेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एक स्टूडेंट रिलेशन है, तो स्टूडेंट रिलेशन क्या है मेरा, प्रोजेक्ट, सॉरी स्टूडेंट रिलेशन और प्रोजेक्ट रिलेशन। पेरेंट टेबल मेरी कौन सी है, प्रोजेक्ट, और चाइल्ड टेबल जो है मेरी वो क्या है, स्टूडेंट है। ये कैसे पता चला मुझे, ये मुझे ऐसे पता चला कि इस पेरेंट टेबल में एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है जिसको चाइल्ड टेबल में मैं रिफर कर रहा हूं, तो ये फॉरेन की जो है वो इसकी वैल्यू को रिफर कर रही है। तो नेम ऑफ प्राइमरी की एंड नेम ऑफ फॉरेन की हम जनरली क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखें तो ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की फॉर स्टूडेंट रिलेशन, दिस इज प्राइमरी की फॉर प्रोजेक्ट रिलेशन। ठीक है, एंड दिस इज फॉरेन की फॉर स्टूडेंट रिलेशन विच इज रेफरिंग टू दिस प्राइमरी की ऑफ प्रोजेक्ट रिलेशन। तो जहां पे फॉरेन की होती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल, जहां पर पेरेंट की होती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। ठीक है, पेरेंट की मतलब जिसको कोई चाइल्ड की रेफर कर रहा हो उसको बोलते हैं हम पेरेंट की। So it is requirement of a relational join that two relations can only be joined when they share at least one common attribute. ठीक है, तो इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन, जब हम आगे नेचुरल ज्वाइन पढ़ने वाले हैं, वहां पे क्या होता है, जनरली हम कॉमन एट्रीब्यूट से ही क्या करते हैं क्या करते हैं, दो पर्टिकुलर टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब ज्वाइन की जरूरत क्यों पड़ती है, ज्वाइन की जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर मेरे पास दो टेबल में डेटा, मेरा दो टेबल में है, ठीक है, एक स्टूडेंट रिलेशन है और एक प्रोजेक्ट रिलेशन है, एक मेरे पास प्रोजेक्ट रिलेशन है, एक मेरा स्टूडेंट रिलेशन है। अगर मुझे पता करना है कि राम का प्रोजेक्ट नंबर क्या है, तो मैं इसी एक टेबल से निकाल सकता हूं कि राम का प्रोजेक्ट नंबर जो है वो है 121। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि राम का प्रोजेक्ट नेम क्या है, किस प्रोजेक्ट नेम में वर्क कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्ट नंबर इस प्रोजेक्ट नंबर से मुझे मैच कराना पड़ेगा, और फिर मुझे पता चलेगा कि राम का प्रोजेक्ट नंबर, मेरा प्रोजेक्ट नेम क्या, मेरा P1 है। तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइन, रिलेशनल ज्वाइन। तो रिलेशनल ज्वाइन हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें डेटा एक से ज्यादा टेबल से निकालना पड़ता है, तो एटलीस्ट एक कॉमन एट्रीब्यूट हमारे पास वहां होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की और फॉरेन की कॉम्बिनेशन का नेम हम सेम ही रखें। क्लियर है? तो यही एग्जांपल समझा रहा है आपको प्रोजेक्ट नंबर का, जिसमें हमने कॉमन एट्रीब्यूट रखा हुआ है। चलिए आ जाते हैं सिमेंटिक और नेचुरल की। तो अब ये आ जाते हैं हम लोग, अभी तक हमने जितनी कीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा सुपर की, कंपोजिट की, उसके बाद कैंडिडेट की, उसके बाद प्राइमरी की। तो जब प्राइमरी की हमने पढ़ा, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ प्राइमरी कीज। ठीक है, प्राइमरी की मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएशन के समय हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की को डेजिग्नेट कर देना है कि एज एन प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की हो गया, मतलब उसमें नल नहीं डल सकता, उसमें यूनिक वैल्यूज नहीं, यूनिक वैल्यूज ही डलेगी, डुप्लीकेट नहीं डल सकता। क्लियर है? सो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी कीज। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी की में पहला आ जाता है सिमेंटिक और नेचुरल की। सो अ सिमेंटिक और नेचुरल की इज ए की फॉर विच द पॉसिबल वैल्यूज हैव द ऑब्वियस मीनिंग टू द यूजर और द डेटा। ठीक है, ऑब्वियस मीनिंग है उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को मैं बोलूंगा सिमेंटिक की और नेचुरल की। क्लियर है? सो इन रिलेशनल मॉडल database design, a natural key is a candidate key that has a logical relationship to the attributes within a row. उस पर्टिकुलर रो के लिए उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स का अगर डेटा मैं रखूं तो मेरे पास तीन प्राइमरी कीज हैं, तीन कैंडिडेट कीज मैंने निकाली थी। एक निकाला था मैंने सीरियल नंबर, एक निकाला था मैंने रोल नंबर या जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर, और एक मैंने निकाला एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास पहले से एट्रीब्यूट है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो मैं इसी को क्या करूंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा। दैट प्राइमरी की इज नोन एज नेचुरल की, क्योंकि इसकी ऑब्वियस मीनिंग है कि ये आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाता हूं, ठीक है, तो दैट इनरोलमेंट नंबर कैन बी अ नेचुरल और सिमेंटिक की, क्योंकि उसका भी एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशनशिप बन रहा है, एक ऑब्वियस मीनिंग बन रही है कि दिस इज योर इनरोलमेंट नंबर, तो वो यूनिक ही होगा। हर स्टूडेंट को एक इनरोलमेंट नंबर जो दिया वो यूनिक वैल्यू ही दी जाती है, यूनिवर्सल नंबर जो दिया जाता है वो भी यूनिक वैल्यू ही दी जाती है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं सीरियल नंबर को अगर मैं देखूं तो सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो है उसका कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है उसका, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल कॉलम ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर अभी आप लोगों के पास है, जब आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आ गए हैं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल करते हैं तो आपके पास ना यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहता है ना आपको एनरोलमेंट नंबर रहता है, ठीक है। आपने एडमिशन लिया तो आपको मिला जाता है क्लास रोल नंबर। जो आपको क्लास रोल नंबर मिला गया है वो क्या है, वो है आपका आर्टिफिशियल की। ये आर्टिफिशियल की है क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं था जिसकी कोई ऑब्वियस मीनिंग बन पा रही हो, ठीक है। तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं था कि जिससे मैं क्या करूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करूं। तो उस पर्टिकुलर की को हम क्या बोलते हैं, उस केस में मैं क्या करता हूं कि एक एट्रीब्यूट में ऐड करता हूं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट में ऐड करता हूं तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं सैरोगेट की और टेक्निकल की और आर्टिफिशियल की, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूं और उसी को मैं बना रहा हूं प्राइमरी की, और उसमें मैं रूल लगा रहा हूं कि इसमें नल नहीं डल सकता, ऐसे प्राइमरी इसमें यूनिक वैल्यूज ही डलेंगी, डुप्लीकेट नहीं डल सकता, ठीक है। और अगर मेरे पास एट्रीब्यूट पहले से है उसी को मैं क्या रहा हूँ, प्राइमरी की बना रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मैं बोलता हूँ सिमेंटिक और नेचुरल की। अब इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैंने किसी को नेचुरल की बनाया है, द मेन डिसएडवांटेज चूजिंग नेचुरल की इज दैट इट्स वैल्यू मे चेंज, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं टाइम टू टाइम, एंड द रिलेशनल डेटाबेस इंजन मे नॉट बी एबल टू प्रोपोगेट दैट चेंज टू द रिलेटेड फॉरेन कीज, ठीक है। तो फॉरेन कीज में इसका चेंजेस प्रोपोगेट कई बार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ पर्सन नेम इज यूज्ड एज द प्राइमरी की फॉर ए पर्सन टेबल एंड ए पर्सन गेट्स मैरिड एंड द चेंजेस नेम, ठीक है। तो जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है कि उन पर्सन का नेम चेंज हो जाता है, खासकर लड़कियों का, ठीक है। शादी के बाद उनका नेम चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे नेम अगर चेंज कर रहा हूँ, नेम को अगर मैंने प्राइमरी की बनाया है, ठीक है, तो वो नेम अगर मैंने प्राइमरी की में चेंज किया तो सारे फॉरेन कीज में भी चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं उनको ज्वाइन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक इज आइडेंटिफाइंग यूनिकनेस, ठीक। अगर मैंने पर्सन नेम को अगर मैंने बना दिया प्राइमरी की, तो पर्सन नेम कैन बी अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। सेम पर्सन नेम के वैल्यूज मेरे पास फिर से आ सकते हैं। तो अगर मैं पर्सन नेम को बना दूंगा अगर प्राइमरी की, तो उसमें मैं डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब अगर मेरे पास फिर से ऐसी कोई टुपल आई, ऐसी कोई रो आई या ऐसा कोई रिकॉर्ड आया जिसमें सेम पर्सन नेम में को रिपीट करना हो, तो मैं इंसर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे यूनिकनेस कंस्ट्रेंट आ चुका है, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए आर्टिफिशियल की। क्लियर है। सो आर्टिफिशियल की मींस मैं क्या कर रहा हूं, आईडी नाम का एट्रीब्यूट एक क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर है। तो अब अगर यहां देखें हम लोग, अगर हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए मैं राइट क्लिक करके एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ठीक है। यहां पर मैं इसको ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद मैं आ जाता हूं क्रिएट में। क्रिएट में आ जाता हूं टेबल डिजाइन में। तो टेबल डिजाइन में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे टेबल नेम मैं यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन कर रहा हूँ। फील्ड डिफाइन कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप रख रहा हूँ मैं शॉर्ट टेस्ट। अगर मैं डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट नेम के बाद सेमेस्टर नंबर होना चाहिए, ब्रांच अगेन इट इज शॉर्ट टेस्ट, ठीक है। सपोज मैंने यही 3 पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, तो जब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है, सेव करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ टेबल 1, मैं लिख रहा हूँ यस। तो टेबल का नेम पूछ रहा है, टेबल का नेम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, यस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइन, तो मेरे इस टेबल में कोई भी प्राइमरी की मैंने डिफाइन नहीं की है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है, तो आपको पूछ रहा है डू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की नाउ। अगर आप यस कर देते हैं तो एक टेबल क्रिएट कर देगा, उस टेबल को आप ओपन करेंगे तो एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली डल गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं सैरोगेट की, ठीक है। अब ये सैरोगेट की को मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूं, हटा के मैं इसको डिलीट कर दिया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट नेम को प्राइमरी की बनाऊं, तो मैं राइट क्लिक करके प्राइमरी की डिजिग्नेट कर सकता हूं।
लेकिन जैसे ही मैंने इसको प्राइमरी की किया तो अब मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने राम लिखा, ट्री लिखा, ब्रांच लिखी CSE, अगर मैं फिर से यहाँ राम लिख रहा हूँ, क्लियर है, यहाँ पे फिर से मैं राम लिख रहा हूँ, तो ये मेरा क्या करेगा, इंसर्ट करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे पास क्या होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट कीज। यहां तक में किसी को डाउट? एनी डाउट? कीज में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? आवाज आ रही सबको? हेलो, यस सर। नो डाउट। चलो बताइए, ये क्वेश्चन दिया है मैंने, गेट क्वेश्चन बनेगा आपसे? ये गेट क्वेश्चन दिया है मैंने, ये क्वेश्चन बनेगा क्या आपसे? ट्राई करेंगे। ट्राई ट्राई कीजिए, करते हैं। रुक जाइए एक मिनट में इसको। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कंसीडर अ रिलेशनल टेबल विथ ए सिंगल रिकॉर्ड। एक काम करते हैं, पीडीएफ की जगह मैं पीपीटी में, इसमें है कि नहीं मैं देखता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि इस पीपीटी में तो नहीं था, इस पीपीटी में भी नहीं है, हाँ इस पीपीटी में है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है मेरा, कंसीडर रिलेशनल टेबल विथ ए सिंगल रिकॉर्ड फॉर ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो अब एट्रीब्यूट दिए हुए हैं आपके पास। एट्रीब्यूट्स क्या क्या दिए हुए हैं? मतलब मेरे पास एक टेबल है जिसमें पहला एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, और ये बोल रहा है कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट। तो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। दूसरा दिया यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक एट द नेशनल लेवल फॉर ईच सिटीजन। ठीक है, तो यूनिक है एट द नेशनल लेवल फॉर ईच सिटीजन। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं बैंक अकाउंट नंबर, यूनिक अकाउंट नंबर एट द बैंक। अ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स और जॉइंट अकाउंट्स। तो मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी हो सकते हैं, बट दिस एट्रीब्यूट स्टोर्स द प्राइमरी अकाउंट नंबर। ठीक है, आ जाते हैं नेम, दैट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड हॉस्टल अंडरस्कोर रूम, रूम नंबर ऑफ द हॉस्टल। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट निकालना है उसको। पहला, बैंक अकाउंट नंबर इज ए कैंडिडेट की। क्या मैं बैंक अकाउंट नंबर को कैंडिडेट की बना सकता हूं? सेकंड, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर कैन बी अ प्राइमरी की। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है, मैं इसको प्राइमरी की बना ही सकता हूं, है ना, एकदम यूनिक वैल्यू है। ठीक है, थर्ड, यूआईडी इज एन कैंडिडेट की इफ ऑल स्टूडेंट आर फ्रॉम सेम कंट्री। तो यूआईडी क्या था? यूनिक एट द नेशनल लेवल फॉर ईच सिटीजन। तो ये भी यूआईडी भी कैंडिडेट की होगा, क्योंकि यूनिक वैल्यू मिल रहा है मुझे, कंट्री के अंदर एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आधार कार्ड है वो एक यूआईडी है, तो ये भी मेरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, दस मिनट और लगेगा सर। If S is in super key such that S intersection UID is null, then S union UID is also a super key. That means अगर S मेरी super key है और इसमें मैं UID को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी S मेरी super key है, S intersection UID को मेरे को मिल रहा है, तो null मिल रहा है। null मिल रहा है मतलब UID मेरा उसमें नहीं है। ठीक है, S intersection UID is null, S इंटरसेक्शन UID इज नल मींस सुपर की में मेरे पास क्या है, UID नहीं है। तो अगर मैं सुपर की में UID को मैं ऐड करता हूं तो वो भी मेरा सुपर की होगा, ये भी मेरा ट्रू है। ठीक है, मैंने कहा था कि सुपर की में और भी एट्रीब्यूट अगर मैं ऐड करता हूं तो वो भी मेरा सुपर की रहेगा। तो ये तीनों मेरे ट्रू हैं। जो एक ही है मेरा जो इनकरेक्ट है वो है बैंक अकाउंट नंबर इज एन कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जॉइंट अकाउंट्स भी हैं। जॉइंट अकाउंट्स मींस टू स्टूडेंट्स कैन शेयर सेम अकाउंट नंबर। तो उस केस में मेरे पास दोनों स्टूडेंट में सेम अकाउंट नंबर स्टोर होगा। इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट नंबर इज नॉट माय कैंडिडेट की। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर एस इंटरसेक्शन यूआईडी इज नल मतलब
एस इंटरसेक्शन यूआईडी इज नल। मतलब इसका मतलब ये है कि सुपर की है मेरे पास, सुपर की मेरे पास हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे पास हो सकता है अच्छा मेरे पास सपोज कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही मेरा सुपर की है, ठीक है, और एस इंटरसेक्शन यूआईडी निकाल रहा हूं, एस इंटरसेक्शन यूआईडी मेरे को नल ही मिलेगा ना, क्योंकि इसमें रोल यूआईडी है ही नहीं, इसमें रोल नंबर इंटरसेक्शन यूआईडी ये मेरा नल ही मिलेगा, ठीक है। नल मिला मतलब अब मैं इस पर्टिकुलर सुपर की में इंक्लूड कर रहा हूं यूआईडी, तो सुपर की मेरी क्या हो जाएगी, रोल नंबर कॉमा यूआईडी, तो ये भी मेरी सुपर की ही रहेगी, ठीक है, ये भी मेरी सुपर की रहेगी, तो ये मेरा क्या है, ट्रू है। यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा जो मैंने एग्जांपल समझाया था। यहां मैंने सुपर की निकाली थी, सुपर की निकाली थी, एक तो निकाली थी स्टूडेंट नंबर, एक निकाली थी रोल नंबर, एक निकाली थी मैंने एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। अब सिटी मेरा सुपर की नहीं है, लेकिन स्टूडेंट नंबर और सिटी का कॉम्बिनेशन में लूं तो ये भी मेरा सुपर की था, क्योंकि यही मेरा यूनिक था, ये यूनिक था मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी यूनिक ही रहेगा, है ना। 1 भिलाई, 2 रायपुर, 3 भिलाई, 4 रायपुर, 5 रूर, सारे के सारे यूनिक रहेंगे, यूनिक रहा मतलब ये भी मेरा एक सुपर की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देखेंगे, मेरे पास क्वेश्चन कराने के लिए 5 क्वेश्चन थे लेकिन टाइम निकल गया है। हाँ, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? तो ये सुपर की और कैंडिडेट की में एक बार डिफरेंस बता दीजिए। सुपर की एंड कैंडिडेट की में डिफरेंस, सुपर की एंड कैंडिडेट की में डिफरेंस ये है कि सुपर की फॉर अ टेबल वी हैव n number of super keys, we can have n number of candidate keys also, ठीक है। फॉर अ टेबल वी कैन हैव n number of super keys, we can have n number of candidate keys, but सुपर की इज नॉट मिनिमल। मतलब सुपर की में मैं अगर टेबल में 5 एट्रीब्यूट है तो 5 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन में मेरा सुपर की रहेगा, और 5 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन मेरा कैंडिडेट की भी हो सकता है, अगर उस केस में उसमें एक भी एट्रीब्यूट मैं डिस्कार्ड कर रहा हूं और वो मेरा सुपर की मिल रहा है तो वो मेरा कैंडिडेट की नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 एट्रीब्यूट हैं, पांचों कॉम्बिनेशन से ही मैं यूनिक आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, तो वही मेरी सुपर की है, वही मेरी कैंडिडेट की है, और वही मेरी प्राइमरी की भी वही बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट की है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 5 एट्रीब्यूट का टेबल है तो मैं 4 एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट के भी सुपर की बना पा रहा हूं, ठीक है। तो उसमें जो 2 एट्रीब्यूट वाला है वो मिनिमल होगा तो वो सुपर, तो वो कैंडिडेट की होगा, 3 वाला मिनिमल होगा तो ही वो कैंडिडेट की होगा। अगर मैं उसे एक एट्रीब्यूट को भी डिस्कार्ड कर पा रहा हूं इसका मतलब है कि वो मेरा कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि मैं उसको और मिनिमाइज कर पा रहा हूं, ठीक है। मिनिमाइज फॉर्म में जो कैंडिडेट की मिलता है उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। क्लियर है?